mystery of Mamiya versus Maham. Japanese culture, this geisha who's a performer, her name is Mamiya. So I just went with Mamiya. तुमसे पे क्या हुआ था? I started getting rape threats and death threats for performing at a festival. तो क्या बचपन से शौक नहीं था वो साड़ियाँ गाने ऐसा कुछ नहीं किया आपने? Actually मुझे पता नहीं था कि ये मुझे आता भी है या फिर ये इसका सीन है जो मुझे आता है. I won't be surprised if you tell me कि राहुल मैं सुबह बाइक लेके ना जा रही हूँ मरी. ऐसे ही है. मैं नोज डाइव किया था प्रोजेक्ट में. Became 132 एपिसोडर. वो थोड़ा सा मेरे लिए था कि oh my god ये कब खत्म होगा. आजकल की जनरेशन आप लोगों की जो है वो शादी के बारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. You jumped into it. We were sitting together. I was like, can we just like get married? So I was the one to like seriously propose to him and say, can we get married? He's like, are you serious? The next day I woke up and I was like, yes. When is your mom going to come? जो trolling होती है वो कहीं ना कहीं change कर रहा है आपको. कुछ effect हो रहा है आपके ऊपर? No. These people don't know me. So if they don't know me, they don't matter. इसको तो इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है. I'm like, bro, तुम्हें पता ही नहीं है. I have to take a stand for my existence, my identity. यार हम लोग कितनी अच्छी conversation कर रहे हैं मामिया. I like it. I'm enjoying it. I'm enjoying it. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Right now हम लाहौर में हैं. Very excited to be in Lahore after a long time. गर्मी बहुत है but हम जिस जगह बैठे हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते. Thank you so much Solis Pizza for giving us this menu and making this interview possible. So जो मेरी मेहमान है, नाम उनका इतना लंबा है, जो ओरिजिनल नाम है कि मैं अटेम्प्ट भी नहीं करी. I'm going to ask her to introduce herself with that name. लेकिन मीसनी में हमने उनको देखा और मुझे याद है जब मैंने मीसनी के एक दो क्लिप्स देखे थे ना, I was like, this girl has a lot of potential and I love how she's coming on the screen. Her expressions are so, you know, deep and like it doesn't look like she's just, you know, doing a job. She really seems to be absorbing what she's doing. फिर हमने उनको झोंक सरकार में देखा है नूरी, आजकल हम उनको जान से प्यारा जूनी में देख रहे हैं, बीच में भी हमने इधर उधर देखा और हम स्टाइल पे तो हमने उनको बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा हुआ है. सो आज हमारे साथ है मामिया और ये हमेशा रहता है कि वो मामिया है माम है. ये स्टोरी भी हम उनसे सुनेंगे. सो लेट्स मीट हर एंड फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you for the really nice introduction. जेन्युइन था, दिल से था, ऑनेस्ट था. Thank you. How are you doing? I'm doing well. I am a little under the weather, but उसके अलावा fit. मैं तो गर्मी पे पिघल रही हूँ इस वक्त. You know? I'm so sorry. No, you're not supposed to. Because you're looking so cool and chilled, and I'm like, hi, is she really looking and feeling that way also? And I'm so glad ये आई ना ऐसे तो मैंने राबिया बेटा बिल्कुल सही डिसीजन था कि simple color, basic color, and simple, you know, we're matching, yeah. So क्या हाल चाल? How's life? Life is good. Life is very happening. It's fast. Mashallah. Yeah, I would say it's fast. So let's start with the mystery of Mamiya versus Maham. You know. Yes, always. Yeah. So first of all, you know the long real name. हाँ, पहले वो तो बताएं ना, नाम इसके साथ मैं शुरू करती हूँ. So it's Maham Shahid Khan Jafar Khan Sherwani, which is a really long name. So I went with Mamiya as a username on Instagram. It was never के ये मेरा it's gonna become an identity. पर वो आपका निकनेम था क्या शुरू से घर में? No, never. But ऐसी जब Instagram स्टार्ट करी थी तो मामिया सोच लिया. हाँ, मेरा स्टार्ट तो मैंने किया था माहम से, but then my ex-boyfriend, like 9 years ago, kind of hacked into my account, and I was like, well, I'll just make another one. Oh. And so in Japanese culture, there is this geisha who's a performer. Her name is Mamiya. Okay. So I just went with Mamiya, and then the rest is history. Everyone chose to go with Mamiya, and then it became an identity. So अब ये मेरा stage name. Okay. वो होता था ना पहले stage name different होते थे. So you're bringing that back. Yeah. But I like it. I really like this name, Mamiya. It's different. Yeah, I like the sound of it. Yeah. And it kind of give you a point of conversation also, ना? Yeah, like this one. Yeah. ठीक है. तो ये कहानी आज हमने mystery solve किया, डॉक्यूमेंट कर लिया फ्यूचर में कि ये जब माशाल्लाह से आगे बड़े-बड़े अवार्ड्स करेंगे ना तो हम बोलेंगे हमारे पास ओरिजिनल स्टोरी है कि मामिया क्यों था इनका नाम, you know. But you're doing a lot of projects. I'm not doing a lot of projects. I am definitely saying no to a lot of projects that I want to do because I don't have time for it. Sometimes like you get the kind of scripts जो आपने सोचा होता है कि मैंने करनी है और फिर उसके लिए वक्त नहीं होता क्योंकि पहले ही commitments चल रही होती हैं. So it's chaos, like, but it's fun at the same time. अगर जब मैं काम नहीं कर रही होती तो I don't feel so great about myself, but I think this is gonna be a
fun journey. अच्छा, जब हम अभी हम ऑफ कैमरा बात करें तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी एक ड्रामे के बारे में, एक प्रोजेक्ट के बारे में. यू सेड नहीं मुझे ये नहीं करना था, इट्स नॉट द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आई वांट टू डू. फिर मैंने आपसे पूछा क्यों, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स जो आप बहुत एक्साइटेड नहीं होती करने के लिए, एंड रीज़न क्या है? So मुझे मज़ा नहीं आता जब मैं कहानी पढ़ती हूँ, तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट नहीं होती किसी नई जगह तो फिर मुझे सोच के मज़ा नहीं आता कि ये करने में आएगा कि नहीं. तो ड्राइंग रूम स्क्रिप्ट्स जो होती हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए हैं और बाहर निकल आया है, बाथरूम में गई है, फिर कमरे में गई है, फिर ड्राइंग रूम, फिर किचन. सो आई डोंट, मुझे ये मैं इंजॉय नहीं करती. ऑल्दो अगर मैं कैरेक्टर को इंजॉय करना शुरू कर दूँ तो वो एक मुख्तलिफ बात बन जाती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया. लाइक हाँ, ये चीज़ भी है, बिकॉज जितना मैं आप लोगों को इंटरव्यू करती हूँ ना, हर आर्टिस्ट को, तो मुझे एक नई चीज़ सोचने को मिलती है फ्रॉम दैट साइड, जो मैं इधर बैठ के नहीं कभी कभी सोच रही होती, या चैलेंज मुझे समझ नहीं आते. अच्छा, ये बताएं, कहीं एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे आपका मैंने पढ़ा था कि माई न्यू फाउंड लव एक्टिंग. सो क्या बचपन से शौक नहीं था, वो साड़ियाँ, गाने, ऐसा कुछ नहीं किया आपने? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये मुझे आता भी है, आता है, या फिर ये इसका सीन है जो मुझे आता है. तो बचपन में बनना क्या था फिर आपने? मुझे बड़े होके कार्टूनिस्ट बनना था. मैंने डिग्री भी इसी में ली. आई वांटेड टू बिकम एन एनिमेटर. पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एनिमेटर बनने के लिए मुझे दुनिया में बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा. वो मुझे करने में इतना मज़ा नहीं आता था. फिर एक्चुअली मैंने बचपन में बहुत एक्टिंग की अपने बहन भाई के साथ. हम बस अपनी स्टोरी बना के उसको ना री एनैक्ट करना शुरू कर देते थे, और अपने अवार्ड्स भी होते थे हमारे घर पे. 3 This is so funny. This is so interesting. It was really funny. It was like whenever we cousins हम मिलते थे तो हम ये करते थे, हम charades खेलते थे. और आई नेवर न्यू कि बस तब का फंसा हुआ है अभी तक. तो जब आई रियलाइज दैट एक पूरे कैरेक्टर को लेके चलना और इंटरनलाइज करना, एक और आइडेंटिटी क्रिएट करना अपने लिए इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो आई रियलाइज इट्स माय पैशन. सो तो वो जब आप अवार्ड शोज करते थे बचपन में या एक्ट आउट कर रहे होते थे, तो आप क्या होस्ट कर रही होती थी, या आपको बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता था, स्पीच क्या देती थी आप? मुझे याद नहीं, आई कांट टेल यू. मैं इतनी छोटी थी, मैं 8-9 साल की थी तब जब की बात कर रही हूँ. फिर जब when I turned 12 तो मेरे मेरा भाई इंग्लैंड चला गया, बहन की शादी हो गई. सो and then it was just me. तो फिर कोई था नहीं जिसके साथ ये मैं कर सकूँ. बट आई रिमेंबर कि बहुत बचपन से शौक था इस तरह की इमेजिनेटिव चीज़ें करने का. तो फिर एक्टिंग की तरफ आई कैसे आप? बाय चांस. खाकान की कॉल आई थी मुझे. खाकान कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक, मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, एक सीन, उसको मुझे ऑडिशन दो उसका. आई वाज लाइक क्या? ही इज़ लाइक बस अभी चाहिए. मैंने कहा ओके फाइन. सो आई वेंट इनटू माय बाथरूम and closed the door and read the script. I did it in front of the mirror और उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और बस मैंने किया सीन और मैंने भेज दिया. And then next day I get a call from the director, who's Fahim Birni. This is College Gate like 3 years ago. And he said कि आप कल आ जाएं मरी. बस. And that was it. That was. और आपने बैग उठा के चली गई मरी, सोचा नहीं कि क्या किस तरह? आई थिंक वो परफेक्ट टाइम था मरी जाने का मेरे लिए, क्योंकि उसी समर हुंजा वर्स हुआ था और हुंजा वर्स पे से काफ़ी बैकलैश मिला था मुझे फॉर डांसिंग एट हुंजा वर्स. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू गेट अवे, एंड आई गॉट अवे. ओके. अच्छा, ये कहानी आई थिंक हमने कॉलेज गेट के उसमें भी वी हैव गॉन थ्रू, हमने हल्का सा टच किया था व्हेन यू गाइस केम विद द कास्ट ना. तो यू टोल्ड मी कैसे आपने वो किया था, बट हम यहाँ पे एक ऑफिशियल मामिया का जो पूरा इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी इसको दोबारा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. तो बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड लाइक हाँ ये तो, क्योंकि मैंने वैसे रिसर्च की थी, लेकिन मैंने सोचा था ये बिकॉज यू डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन राइट नाउ ऑन द नेट, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही लेके चलूँगी कि हम आपके बारे में सारी डिटेल्स लेके चलें. हुंजा पे क्या हुआ था, इफ यू वांट टू टॉक? No, I'm okay. Like, and how were you involved in that? So a few friends, someone I know from Karachi, was taking a bunch of artists, singers. Hassan Rahim was there, Daniel Zafar was there, Manu was there. All these artists were there. They were going to perform वहाँ पे ना. तो तीन दिन का वो festival. It was a festival. वहाँ के locals involved थे. उन्होंने they made so much revenue because of Hunza Verse. I think याक ग्रिल नाम की जगह है, उन्होंने 22 लाख कमाए थे 3 दिन के अंदर.
just with their food. So I mean, it was great. Everything was fine. हम हर रोज़ उठते थे, हम थोड़ी सी हाइक करते थे, ऊपर जाते थे, वहाँ फेस्टिवल होता था, एक दिन कल्चरल नाइट थी, एक दिन हमारे जो आर्टिस्ट आए हुए थे उन्होंने परफॉर्म किया था. तो जब दानियाल ने परफॉर्म किया था तो मी एंड दानियाल हैड दिस सॉन्ग, तो हमने सोचा था हम इसकी वीडियो साथ करेंगे. Okay. उस गाने पे आई परफॉर्म्ड विद हिम. नाउ this I don't know if you know Rosie Gabriela. I don't know if she's relevant anymore. या फिर वो चली गई है पाकिस्तान से. वो है एक कनेडियन औरत, white skinned. So she goes around Pakistan on her bike. So she used my video as clickbait और किसी random हाथ की उसने तस्वीर लगा दी जिसमें I think random drugs पड़े हुए थे. So she kind of posed that oh these kids are going to Hunzaverse and they're doing drugs और ये कचरा मचा रहे हैं, गंद मचा रहे हैं जो मैं उठा रही हूँ. अब इतनी सिली और एक तो क्योंकि उसकी डेट लिखी हुई थी पुरानी और उसने जब लगाया तो उसने कहा कि ये मैं इनका कचरा उठा रही हूँ और Hunzaverse हुआ उसके बहुत बाद था. So like there was a lot of debates that we could prove her wrong, but we did not engage. But I started getting rape threats and death threats for performing at a festival. So आप सिर्फ आपको मिली थी, बाकी जो नहीं ग्रुप में लोग थे नहीं किसी को नहीं मर्द हजरात उनको नहीं, किसी को नहीं. अच्छा, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी तो wouldn't it have been better कि To talk थोड़ा about it? in the sense कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने No, I talked about it. कि नहीं as a group you guys what about कि उनको मतलब करें कि नहीं यार what are you guys talking about, we never did anything like that, because मुझे याद है बहुत सी उस वक्त ना and ये बात भी कि गन बहुत मचाया, ये हो गया और फिर शायद उसके बाद कुछ बाद में जो लोग आए उनको बैकलैश भी उसका फेस करना पड़ा, you know. बाद में लोग आए इन द सेंस कि बाद में अगर कोई इवेंट होने का सोचा या कुछ तो वो लोकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके थोड़े वो गए थे. I honestly went to Hunza again. Okay. उसके 2 महीने बाद and there were locals who were saying कि ये रोज़ी आके दिखाए हमें. Oh, okay. Hunza में क्योंकि उसने रेवेन्यू किल कर दिया. Yeah. There was Yeah. it was great and कोई कचरा नहीं होता था. हम हर रोज़ जाते थे, हर रोज़ जाने से पहले वहाँ पे डस्टबिन होती थी, वो डस्टबिन के अंदर इतने बड़े बड़े काले थैले होते थे, लोग उठा के उनमें अगर कुछ गिर भी गया है, अगर Red Bull गिर गई है anything, so they would pick it up and like they put it in the can. I personally see अगर मुझे कोई नज़र आ जाए ना कचरा पहाड़ों में तो मैं उठा के फेंकती हूँ because it's the only place that's clean अब रह गया हमारे पास. Okay. Thank you for sharing this. I think interesting conversation हम Yeah. hopefully start करेंगे इससे. अच्छा, तो going back to your journey, so वो पहला प्रोजेक्ट आपका हुआ, घर वालों से बात की, क्या किया और बस उनका क्या रिएक्शन था? I was married at the time also, so मैंने बस अम्मी को कॉल की, मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ कल मरी मैं तो जा रही हूँ कल मरी, मैं कल मरी जा रही हूँ. She was like क्या मतलब तुम टीवी पे आओगी? मैंने कहा अभी तो नहीं आऊँगी, बहुत टाइम है उसमें, because I knew कि चैनल आएगा और पता नहीं कब आएगा, बट इतना नहीं पता था कि 2 साल बाद आएगा. फिर she's like okay yeah great best of luck. फिर I don't know, it just happened like एक दिन था मेरे पास, डिसाइड भी नहीं मैंने किया, मुझे बस था कि मैं जा रही हूँ. मेरे दोस्त थे और आई थॉट कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कुछ नया एक्सप्लोर करने में जहाँ पे आई हैव सपोर्ट सिस्टम एंड देन अ वेरी न्यू करियर. पर उस वक्त सोचा था इसको मैं एज अ करियर? उस वक्त तो बस यू वर जस्ट गोइंग कि एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ. और हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, he was like okay go ahead, you need this break, have fun. Yeah, he visited me while I was there, so he understood that it's an interesting process that I'm going through. And did you enjoy while doing it? I enjoyed it thoroughly. मतलब especially जो हमारा पहला स्पेल था वो 22 दिन का स्पेल था लगातार. तो हम उसी होटल में उठते थे, उसी होटल में हमारा कॉलेज होता था, उसी होटल में हमारा डिनर लंच सब कुछ होता था और रात को हम माल रोड पे जाते थे, शॉपिंग करते थे. It was great. Like I think मुझे लगा कि मैं कॉलेज में हूँ उस सबसे. So किस पॉइंट पे आपने रियलाइज़ किया कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको अब सीरियसली लेके एज अ करियर फॉलो करना चाहती हूँ? मीसनी के बाद हुआ, मीसनी से पहले हुआ? आई थिंक मीसनी के दौरान हुआ था. अच्छा, मीसनी तक भी यू वर नॉट श्योर? आई वाज़न्ट श्योर. जब मैंने मीसनी चूज़ किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि अगर मुझे एक्टिंग आती है
तो ये डबल रोल मैं कन्विंस कर लूँगी लोगों को कि ये दो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं। तो when that happened, जब लोगों ने इस बारे में बात करनी शुरू की कि ओ इसको डब किया हुआ है और ओ ये तो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी दिस इज़ फॉर मी कॉलिंग। या दिस इज़ माई कॉलिंग। बट उस वक्त क्या 2-3 चीज़ें थी जो अट्रैक्ट भी कर रही थी, जो कंसर्न भी था, कुछ ऐसा प्रोसेस जहन में आ रहा था कि मैं करूँ नहीं करूँ, और आर यू द काइंड ऑफ पर्सन लाइक बस यार इसको स्टार्ट करते हैं देखी जाएगी? हाँ, मैं चीज़ों के अंदर तो ऐसे ही नोज डाइव मार के जाती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है ना यू द काइंड ऑफ पर्सन। या डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू टेल मी कि यार मैं सुबह बाइक लेके ना जा रही हूँ मरी। हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज, आई वोंट बी सरप्राइज। नो ऐसे ही है। मैं नोज डाइव किया था प्रोजेक्ट में और इट वाज सपोज्ड टू बी 60 एपिसोडर, पर आई थिंक वो पहले 10-15 एपिसोड के बाद उनको पता चल जाता है कि ये इसका सीन हो गया ड्रामे का, तो फिर वो इट बिकेम 132 एपिसोडर डबल। ओह माय गुडनेस। वो थोड़ा सा मेरे लिए था कि ओह माय गॉड ये कब खत्म होगा। मेरी जिंदगी बन गया था वो ड्रामा। इट टुक मी 6 months. But would you say it was a good training ground for you? I think it was great training. Like उसके बाद मैं हमेशा वैसे ही सोचती हूँ कि इसके बाद तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो Is that true by now? Still true? I think so. The things that I've done, doing, yeah, and everything that I've gone through and I'm going through, I would say I'm not on an easy set right now. It's also very, very challenging. More challenging in ways than Meesni was. Meesni का बस ये था कि वो बहुत लंबा था और उसके अलावा I was fine. I liked Islamabad. But Meesni आया कैसे था? Call. It was a call. उन्होंने आपका कुछ काम वाम कहीं देखा था हम वालों ने? I think I got a call and I went to the office and उससे पहले before मेरे जाने से पहले मैंने उनको अपना एक क्लिप भेजा कॉलेज गेट का जो था मेरे पास, and then they were like please just do this, and there was a lot of convincing, so I did it. तो कॉलेज गेट के बाद क्या आपने शुरू कर दिया था कि मैं ऑडिशंस दूँ, मैं करूँ, और you were just sitting at home और ये आ गई? Okay. No, that's what I'm saying. It's all very like I was very fortunate. And मैंने absolutely no, I haven't seen struggle. I would say because I did not want to become an actor. मुझे पता नहीं था कि मैंने बनना है, तो मैंने कोशिश नहीं की उस तरह जिस तरह like I know a lot more people who worked really hard to just get in the business. So no other. अगर मैं आपकी देखूँ तो कुछ ड्रामे आपके लाइक आसिफ रज़ा मीर का ऑपोजिट काम करना, अभी भी जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें फरहान सईद के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स में भी मोहम्मद अहमद साहब हैं, शमीम इलाली, सो लाइक इतने लोगों के साथ जिनका एक्सपीरियंस भी है या दे आर रियली बिग नेम्स इन देयर ओन कैपेसिटी, ओवरवेलमिंग होता है? हाउ डू यू टेक इट? स्पेशली आसिफ रज़ा मीर के साथ आप कर रही थी, क्या होता था एज एन एक्ट्रेस? Challenging था or you were excited? Honestly, I was excited, I would say, because I know him from Gangs of London, and I was excited. But मुझे later realize हुआ कि I was never starstruck. Okay. I was maybe like when I first saw him and उनका scene हो रहा था और हमारा पहला scene था वो साथ, और show का भी वही scene था जो हमारा पहला scene होना था साथ, तो he gave me a tip. He was like, look into this eye, not this, and I was like, okay. I was like, yes, okay, give me more tips. But he's so good that उनकी energy से मेरी energy bounce back, like it would reflect. Okay. He would give me such a good performance कि मेरे अंदर से वो character ही निकलता था जो निकलना चाहिए था. Yeah. I don't know how to explain it. Like, but no, other than that, I don't think कि मैं ये सोच के कभी भी सेट पे या मैं कैरेक्टर का सोच के खड़ी होती हूँ कि मैंने ये कैसे करना है, मैं अभी दिस इज़ व्हाट द कैरेक्टर इज़ गोइंग थ्रू, सो उसमें इतनी इमर्स हो जाती हूँ, आई वुड से कि वो भूल जाता है कि कौन है उस वक्त सामने. फिर जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो आई अंडरस्टूड कि लाइक इट्स अ थिंग कि मे बी इट इज़ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कुछ लोगों के लिए कि कैसे परफॉर्म करना है. या मे बी यू राइट कि आपको वो हिट नहीं किया, बट आई थिंक लाइक, और जब मैं देख भी रही थी ना ड्रामा, आई वाज लाइक
I mean, like it was great, and you guys like clicked on screen also. Yeah. But to perform that well in front of him because he's really iconic, good. you He's know. great. So and आपको वो presence पता भी चल रही थी, you know, Yeah. जब screen पे वो थे. You think acting inborn होती है या acting सीखी जा सकती है? आप सीख रही हैं, आपने आसपास लोगों से चीजें pick की या what's your process? My process is to not look at what everyone else is doing. I try very hard. मैं जब मीसनी करी थी तो my director said that you should look at this drama, and I was like, I'm so sorry, Okay. but whatever जो हुआ हुआ है हमारी इंडस्ट्री में पहले, अगर उससे कुछ आप मुझे रेफरेंस मेरे लिए बना रहे हैं तो मैं नहीं बनाऊंगी अपने लिए. Okay. Because it's so influential. आप जब नहीं भी चाहते हैं ना तो फिर वो आपको बस बैठ जाता है दिमाग में. एटलीस्ट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि अगर मैंने कुछ देखा है तो मैं उसको ऑब्जर्व कर लूँगी, इंटरनलाइज कर लूँगी और फिर अनवांटेडली अनइंटेंशनली वो कहीं निकल ना जाए. But is it just the local content या foreign content देख के भी आप नहीं अपने आप को करने देती हैं कि मैं influence हो जाऊँगी? But because I watch a lot more Yeah. foreign content, I take social cues कि इस एक्टर ने ये क्यों किया होगा इस जगह पे. But I don't try to mimic नहीं करना Yeah, चाहती of मैं, course, yeah. पर understand करना चाहती हूँ कि ये character उसने ऐसे बनाया है या फिर कैसे बनाया है, और मैं like little hints that I like to take from content. When you started, फिर आपकी performance माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, मैं आपको देखती हूँ. And I think generally across the industry ये एक है चीज़, like people have appreciated you for your work, and you know, I am very humbled. and people can see that you have talent. But उसकी वजह से क्या आपको अपने आसपास insecurities भी face करना पड़ी? In the sense कि आपके talent को देख के दूसरे लोग जो आसपास हैं वो insecure हो गए, ऐसा face करना पड़ा? I think मुझे नहीं करना पड़ा face, but आपको पता ही नहीं चला? मुझे पता चला पर पता face चला? नहीं. हाँ, मुझे Okay. पता चला पर मुझे face नहीं करना पड़ा क्योंकि if you've made a mark, अगर आप एक जगह पे हैं तो किसी वजह से हैं. I think I can't take anything away from someone else, and likewise I don't think someone else can take away what I have. Yeah. तो मुझे पता चली बातें कि कोशिश है कि why is she getting more screen time? Why is this happening? Why whatever? But I don't think it matters in the end. My performance will speak for it, and it will get me what I need. So you जो नए लोग आते हैं, लड़के और लड़कियाँ, उनको इस किस्म की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं that when they are really good at their talent, जो आसपास है वो सपोर्ट के बजाय इनसिक्योरिटी में चेंज हो जाती है. हाँ, and I think ये तब भी होता है जब आप, क्योंकि आप नए आए हैं, it happens, it's natural. I also think I can't blame anyone. जिस तरह if you and I have a group of friends, Yeah, true. and कोई नया इंसान आता है उसमें, तो हम, yeah, we'll be nice, but we won't be cordial, as yeah. nice as we are to each other. तो थोड़ा time लगता है to understand किस तरह का इंसान है. Also, people think that I am a bitch and a half. I don't know why. Like it's I was just. gonna ask why. I don't know why. Like it's just unless asked, I don't like initiate conversation. मैं बात शुरू नहीं करती. If you give me a compliment, I'll say thank you, but I will not indulge like because you gave me a compliment. So I think in the industry, what I noticed is that a lot of relationships run on hyping each other up. Even if it's real or not, Yeah. people would do it. But I don't believe in superficial friendships, so I don't like. I stay away. And as a female who's just entered the industry a few years ago, you know, do you feel that as females, आपको careful रहना पड़ता है आप कैसे अपने आप को conduct करें? There are instances where people can take advantage of you, or you feel कि हमारी industry अब एक safe space है, और अगर लड़कियाँ जो आ रही हैं, even लड़के जो आ रहे हैं, you know, उनको इतना ज़्यादा bother होने की ज़रूरत नहीं है, या आप मे बी एक्सपीरियंस किया, मे बी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आसपास देखा ऐसी चीज़ें होते हुए. Oh yeah, no, I was harassed on a set. Really? Yeah. I won't speak which set, but it was very dramatic. I like still randomly वो बस आ जाता है मुझे कि oh my god that happened, and I did not slap the guy. So like it was and it was very public. So like I had to scream, okay, don't fucking touch me. Like it had to, and I had to like scream very very loudly after repeatedly मैंने उसको बोला हाथ don't touch me, please don't touch me. Why are you touching someone who doesn't want to be touched? So it was very very traumatic, and
I mean it was dealt with उस तरह से नहीं उसके साथ डीलिंग हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ये सेट पे हुआ है, पार्ट ऑफ द सेट वो बंदा जो भी था एक्टर। ओके too much information but no not enough, like I think I wish I could take the name but I don't मैं we won't take name but I देना ही नहीं चाहती उसको इतनी importance है मैं उसका नाम भी लूँ। But I think Manya, it's important to raise these topics and I'm thankful to you that you are being brave enough to raise this and honestly share कि ऐसा हुआ था क्योंकि जब तक हम इस बात पे बात नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ रुकेगी नहीं। ये चीज़ तभी रुकेगी जब लोगों को थोड़ा डर होगा कि ओह if I do something my name can be taken, you know, otherwise there's no। He did get scared, उसे डर गया था और उसने अपनी स्टोरी बना ली कि oh why did she say don't fucking touch me, why did she, उसने मुझे गाली क्यों दी। उसका मतलब है वो परमिशन मिल गई आपको टच करने की क्योंकि आपने गाली दे दी। He made it about himself कि इसकी जुबान देखें आप। I'm like what, this guy is insane, मैं इसके बारे में क्या ही बात करूँ। But definitely you have to be cautious. Yeah, you have to be cautious. So I think वो उस experience के बाद मैं ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गई थी। जब आप सेट पे होते हैं तो आप अगर घर से दूर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो लाहौर से निकल के कराची या इस्लामाबाद जाके शूट करती हूँ, तो यू ट्राई कि आपकी एफिलिएशन इस तरह बन जाए लोगों के साथ सेट पे कि आसानी से टाइम गुजरे। बट फिर जब ये हुआ तो आई वाज लाइक नहीं बाबा, बस सही दूरी ठीक है हम सबसे। एंड अब आपकी बात मैं सोच रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार लाइक हम कहते हैं यार वो कितनी रिजर्व है, वो कितना नखरा है, बट कभी कभी सिचुएशंस आपको फॉर्म यू, दे मेक यू बिहेव लाइक दैट और दे मेक यू चूज दिस पाथ रादर देन दैट। डू यू फील हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री is ready to accept the bold and the beautiful? I think they have. They accepted me, like I didn't, so I was shocked when everyone was very accepting of me. मुझे कहा बहुत से लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, बहुत से नहीं मैं कहूँगी जिनसे मेरी दोस्ती होगी इवेंचुअली, कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम बदल देना तो आप 6 महीने में टॉप 5 में होंगी। तो मैं इस विशस सर्कल का पार्ट नहीं बनना चाहती, because I know कि there are so many actors and actresses who wear what they want, just do not, वो तस्वीरें नहीं लगाते इंस्टाग्राम पे, but the moment you wear it publicly it means nothing, next to nothing if you put it up on Instagram. So what they're basically doing is कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से इंस्टाग्राम चलाएंगे ताकि लोगों को ना पता चले, पर वो विशस सर्कल में फिर वो इंसान जो बस इज ऑनेस्ट अबाउट हाउ दे लिव वो फंस जाता है क्योंकि उसको सिर्फ वो गालियाँ खा रहा होता है। तो ये फिनस्टार्स बनते हैं और लाइक एवरीथिंग्स फाइन ओवर देयर, बट आई डिसाइडेड कि it's fine, like you can wear what you want and be a good human being and be nice and kind, and that's what matters. But कुछ थोड़ा रिएक्शन में भी कर रही हैं आप क्या? Just to say कि okay बोलते रहो जो बोलना है, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है. I'm just asking. Oh, no, that's a very good question by the way. I never thought about it उस तरह से. I think reaction में ही है. Because जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे feel आ रहा है कि you know कि थोड़ा सा you are like कि नहीं I have to, yeah. हाँ, I must. Or you're like कि नहीं, I will prove कि मेरा talent is above everything else. Yeah, absolutely. So I don't know. It will be so like people don't understand कितना आसान होगा मेरे लिए to get more work if I was to just change the way. Oh my goodness, you were saying कि not just publicly work that you get is also affected by how you what you're wearing. Yeah. I remember this was this TVC. And मैंने एक कैंपेन कैंसिल की, मेरी डेट फाइनल थी, I was supposed to go to Turkey and do it. तो उस टीम के अंदर एक ख़वातीन थी जो her preference of being a modest woman, great, always respect your preference of however आप अपने आप को कैरी करना चाहते हैं, but she did not like me because of the way I dress. तो she ghosted me, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर TVC का पता नहीं चला और मेरी डेट्स ज़ाया हो गई. And then I realized, and then I like really got into it because I was like, you can't just waste someone's time. Time is the most precious thing on this planet. तो फिर मुझे समझ आई कि उनको मसला था मुझसे. So you've chosen कि मुझे ये consequences face करने पड़ेंगे. हाँ, किसी को करने पड़ेंगे. Somebody has to. Might as well just be me. In any way, unconsciously जो ट्रोलिंग होती है, जो कमेंट्स आते हैं जो मैंने पढ़े हैं आपके नीचे जाके
या जनरली भी जो आप मुझे बता रही हैं वो कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है आपको, कुछ इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर एज अ पर्सन? No, these people don't know me. So if they don't know me, they don't matter to me. So I have bad days when I'm feeling depressed and मुझे जब मैं तब पढ़ती हूँ कि ये इसको तो इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है, तो I'm like bro, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, चला जाता है काम ऐसे. I have to take a stand for my existence, my identity. But I know, I'm glad कि जो people in power हैं, जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, मुझसे मिलने के बाद to have spent time with me, they realize कि oh, like what? She looks like she's going to slap you, but she doesn't. But yeah, so I think हम form कर लेते हैं opinions लोगों के बारे में बहुत पहले उनको जानने से, तो वो थोड़ा बदलना है. You got married very early. I think I got married on the right time. क्या एज थी? 25. Okay. Yeah. पर फिर भी आजकल तो मतलब थोड़ा सा लोग 25 पे फिर भी इतनी शादियाँ नहीं हो रही हैं. स्पेशली इफ़ यू स्टार्टिंग अ करियर, तो यू नो वो, लेकिन तब आपने करियर नहीं स्टार्ट किया था एक्टिंग का. सोच रही हूँ वो टाइम जब आजकल की जनरेशन आप लोगों की जो है वो शादी के बारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. एंड थोड़ा आप यू जम्प्ड इनटू इट, यू नो. No, I didn't. Honestly, we knew each other. हम साथ पढ़ रहे थे और हम 3 साल से we were seeing each other. Okay. तो बस मैंने फिर एक दिन सोचा, अम्मी कहती थी 10 बजे घर पहुंचो. मैंने कहा मैंने नहीं आना घर. मैं कहा आप घर मैं आऊँगी, आप सो जाएंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी? I am what, like 21, let me be. And then I was 25 one day, and then she was still like घर पहुंचो, 10 बज गए. मैंने कहा, she said कि अच्छा ठीक है, फिर कब शादी करोगी तुम? मैंने कहा फाइन. फिर I called Gul and I was like, तुम्हारी अम्मी को कौन रिश्ता ले? And no, actually before I called him, we were sitting together. I was like, can we just like get married? So I was the one to like seriously propose to him and say, can we get married? He's like, are you serious? And then the next day I woke up and I was like, yes, when is your mom going to come? And then she came, and I think within 10 days my sister was मेरी बहन डेनमार्क होती है, तो उन दिनों वो पाकिस्तान में थी, तो they were like, let's just do it now. 10 days में शादी हमने निकाह कर लिया. Okay. So निकाह किया, it was a मस्जिद का सादा सा निकाह. उसके बाद it was dinner, और फिर हम फेरी मेडोज गए, हमने रिसेप्शन की और ख़त्म बात. Oh wow. Yeah, that was very simple. Okay. अभी भी हम सोचते हैं शादी करनी है हमने. A big affair, you know. शादी करनी है दोबारा. But that must have been so beautiful, Ferry Meadows. Oh yeah, it was the best decision experience of my life. हमारे दोस्त साथी बेचारे ऐसे सूट उठा के 3.5 घंटे की ट्रैक की उन्होंने अपनी. I know, I'm thinking it was insane. The dedication, it was lovely. I loved it. So वो जो जुमला होता है कि ये शादी के बाद करना जो करना है, that played a big role. Yeah, played a big role. Like I feel like I'm not answerable to my parents anymore, and they thought कि पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा. ये जो so your husband took the responsibility. इस लड़की को मैं कर लूँगा. My mother-in-law is so supportive. My husband, mashallah, touch wood. This is wood? No, this is. So like my life is like a breeze. I have the best support system, I would say. माशाल्लाह कहती है सब सही होगा, फिक्र नहीं करे. How did you meet him? We were studying together, BNU में. हाँ, हम class fellows थे. तो दोस्ती से मोहब्बत या डायरेक्ट? नहीं, दोस्ती, बड़ी लंबी दोस्ती हमारी चली. He helped me when I was very vulnerable. Most of my friends did. पर मुझे ना realize हुआ after we started seeing each other कि हम जो लड़कियाँ होती हैं, हम nice guys को उतनी value नहीं देती जितनी bad boys को देती है. So I obviously like for some reason young women are attracted towards toxic men, and he broke that circle for me, and then I realized कि मुझे पता ही नहीं था this is what I wanted. Just but क्यों young लड़कियाँ? I don't know. हालांकि अब तो mental health, emotional abuse के बारे में awareness भी इतनी ज़्यादा है, conversations भी इतनी होती हैं, but फिर भी होता है. नहीं, मैं देखती हूँ अभी like यही चल रहा है. Like now there's situationships. मतलब it's किसी भी चीज़ बात को डीप बनाना हो आपने तो उसको एक फिनोमेना बना दे, जो कि होती है. लाइक आई अंडरस्टैंड कि हर फिनोमेना और हर लाइक एक थॉट से दूसरी थॉट इज़ अ वेरी डीप फिनोमेना. हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, आज तक आधा भी नहीं समझ आया अपना आप, तो कैसे किसी और को समझेंगे.
But situationship मुझे नहीं, I don't know. I have absolutely no knowledge about it. But पता नहीं क्यों, I think हम औरतों में ना एक कीड़ा होता है. Because we're emotional beings, so we think that when you nurture, and it's true, when you nurture and love किसी भी चीज़ को, एक पौधा हो, एक जानवर हो, एक इंसान हो, उसको अगर आप प्यार देंगे तो वो ग्रो करेगा. पर ज़रूरी नहीं है कि ये हर इंसान ग्रो करना चाहे. यू कैन ओनली हेल्प द वंस हु वांट टू बी हेल्प्ड. क्या हम लोग ये सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि हमने एक इंसान को चेंज कर दिया, मोहब्बत, या फिर ये वो अफसानवी वो जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट लव कैन चेंज एंड you are the positivity in somebody's life. Yeah, ये रोल प्ले कर रहा है. ये भी होता है, like you want to be good, you want to be the good part in someone's life. ये भी होता है. Yeah, that's true. So कभी ये ख्याल नहीं आया था कि यार बाद में सोचूं is it love or not love, बाद में कोई और बेहतर मिल गया? Because आजकल के तो लोग बड़ी ऐसे सवाल भी सोच रहे होते हैं ना, ये चीज़ें. प्रैक्टिकल बात है वैसे. ये लगता है प्रैक्टिकल बात है. ओवरथिंकिंग नहीं है. ओवरथिंकिंग से अब कैसे आप अपने दिमाग को रोकें? पर बहुत, अगर आप किसी के साथ हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इससे बेहतर मुझे मिल सकता है, तो आप उसके साथ ना रहें. इससे बेहतर कोई जवाब हो ही नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में कि the fact that you think that there can be someone else, it means that this is not the person. True. Simple. What's your definition of independence for women? कैसे एक independent woman को आप define करती हैं, या आपको क्या लगता है आप लोग क्या चाहते हैं independence के नाम पे? कैसा सवाल किया मैंने, क्या चाहते हैं आप इंडिपेंडेंस के नाम पे? अरे राबिया, आप क्या चाहती हैं? आप भी एक इंडिपेंडेंट वुमन. देखिए, इंटरव्यू आपका है. मैं तो ऐसे सारे सवालों से ऐसे भाग जाती हूँ. इंटरव्यू आपका है. आई थिंक फ्रीडम को कोई नहीं खरीद सकता, कोई बेच भी नहीं सकता फ्रीडम. तो आज़ादी, सो यू हैव टू मेक अ लाइफ. अपनी ज़िंदगी एक ऐसे शेप करनी है. मैंने, आई कैन स्पीक फॉर ऑल वुमेन नाउ. तो कुछ औरतें होती हैं, उनको चाहिए होती है सिक्योरिटी और हार्बर करके उनको कोई रखे. और सम वुमेन आल्सो लाइक पोजेसिव मैन until they don't, but some women like it. But I personally think that independence is like another word for freedom. So अगर if I have freedom to be my own person, मैं जो हूँ वैसे रह के और उसी में ग्रो करके इवॉल्व करके रह सकती हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द फिर वैसे ही लोग होंगे जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं ये करते हुए. और रिस्पेक्ट क्या रिलेशनशिप? Yes, respect is the first step to form a relationship, I think. अगर किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर I don't think it will ज़्यादा दूर नहीं जाएगा. बट क्या चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है? कभी कभी जैसे पोजेसिवनेस की हमने बात की, तो वो बड़ा वो था ना कि वो हीरो आता है फिल्मों के, तो तुम मेरी हो और बस हम सब तुम्हें कोई आँख उठा के देखे मुझे पसंद नहीं. बॉलीवुड ने बड़ा खराब कर दिया भाई. लेकिन अभी भी हमारे ड्रामे भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा है हम भी छोड़ेंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को. अच्छा, पहले तो नहीं ऐसे होते थे फ्रॉम व्हाट आई नहीं, पहले भी होता था. ऐसे ही होते थे. पहले भी होता था, शायद इतना नहीं होता था, या वो बैलेंस हो जाता था. बट अगर आप देखें तो अंडरलाइन थीम्स आपको ऐसी नजर आएंगी ऑफ आई थिंक हमने हमेशा लव को पोजेसिवनेस एंड a little more submissive and aggressive and more controlling या power की चीज बनाया हुआ है. यार हम लोग कितनी अच्छी conversation कर रहे हैं मामिया. I'm enjoying it. I'm so impressed by the lines of Kenny. इसमें तो बुक लिखी जा सकती है. हाँ, सही बात है. कितनी एनालिसिस किया है. किताबें लिखी जा सकती है. But no, but that's a good point. But my point of conversation इन चीज़ों पे ना इसलिए होता है कि मुझे लगता है हम लोग ना बड़ी ऊपर से चीज़ों की बात करने की, रिस्पेक्ट दो और इंडिपेंडेंट. लेकिन भाई व्हाट डज इट मीन रियली? लेट्स डिफाइन इट सो दैट पीपल आर क्लियर कि ये रिस्पेक्ट के उसमें आता है, ये इंडिपेंडेंस के उसमें आता है. छोटी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट इन योर माइंड वुड इट बी? मैं अपने घर की बात करती हूँ. हम आपकी बात कर रहे हैं. So for example, I hate clutter. ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में इतना होता है. पर जब कहते हैं ना कि जैसा आपका दिमाग का स्टेट होता है वैसे आपके घर का स्टेट होता है. So no matter how hard I try, my room is cluttered. My bathroom is cluttered.
एंड आई डू, मैं छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ उस क्लटर को ना हटाने के लिए. मैंने कंपार्टमेंटलाइज कर ली हुई हैं चीज़ें कमरे में. अब मुझे होता है कि अगर ये तौलिया है ना तो ये तौलिया दरवाजे के पीछे ही होगा. ओके. So if my husband does not put the towel behind the door and he knows that it gives me the ick, and वो एक दफ़ा भूल गया, दूसरी दफ़ा भूल गया, अगर वो तीसरी दफ़ा भूलेगा that's disrespect for me. So like I mean it's a very small thing. It's not like oh मैंने तुम्हें disrespect क्या कहा मैंने, इस तरह की बात नहीं है. But it's just कि ये चीज़ें होती हैं when you care about someone, तो आप इस बारे में भी care करते हो कि उस इंसान को क्या पसंद है और क्या उसको पसंद नहीं है, या फिर क्या उसको देख के खुशी नहीं होगी. तो जब मैं कराची जाती हूँ और मैं वापस घर आती हूँ और मैं जब कमरा छोड़ के जाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी में पैकिंग करती हूँ, कचरा करके जाती हूँ कमरा. बट व्हेन आई कम होम माय रूम इज क्लीन. वाओ, इट्स स्क्वीकिंग क्लीन. इट्स नॉट कि वो फिजिकली झाड़ू लगा but he रहा makes है, sure but कि he वो है makes ना. sure कि Yeah. there's new sheets, there's a new towel, there is the bathroom is clean, everything is compartmentalized as it needs to be. And these like little things that make your life, you know, that considerate होना होता है आपको. जब आप considerate होते हो तो वो reflection होती है कि आप respect करते हो किसी को. Same for you, I'm sure. आप भी छोटी चीज़ों का ख्याल करती होंगी. Yeah, I try. Yeah. Are you romantic? I Do you want these big gestures of romance? Yeah. I don't know how to react to like. Seriously? Yeah, I never know like. Because So has he ever done something that you like? अच्छा मैं कैसे इसको react करूँ? हाँ, when he first gave me the ring ना, but way before we got married, like I think हमारी शादी से 2 साल पहले he just gave me the ring. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ. बेचारा, I'm feeling bad for him. I was sitting in a car and he उसने plan किया था कि सुशी पे जाएंगे, और सुशी इतनी बुरी थी जहाँ मैं उसको ले गई. I was like so sorry, मुझे पता नहीं था कि he has planned something. तो बुरी सुशी थी, तो वहाँ से हम उठ के फिर हम गाड़ी में बैठे. He's like I don't know, बस मुझे like I have to do it now. I was like Okay. What? So he pulled like he was a ring in his hand. And it was a big gesture. Yes. But I didn't know like how to react. I was like, oh my god, like wow, yes, it's really nice. But what do I do? Like how I didn't know how to show my excitement. मेरा ये मसला I think I don't know if I've like talked about it before, but मेरी body को नहीं पता कि कुछ celebrate कैसे करना है. So even when the biggest things happening, I am very like वो जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं ना, वो उस टाइम पे नहीं आते हैं. वो तो शादी पे क्या किया था आपने? पहले से हैप्पी केमिकल्स को बस कुछ करना शुरू किया था कि कोई उस तरह की एक्साइटमेंट लाइक समथिंग बिग इज हैपनिंग, मे बी फॉर अ मोमेंट. Has life made you like this? या हैं? ऑफ कोर्स. या Like what happened maybe in बचपन या? No, I think it happened after like I lost my brother. So like 8 years ago. 9 now actually. So it was, you know, so you sometimes think कि ये इंसान तो हमेशा होगा ज़िंदगी में. So like I'm the youngest घर पे, तो जब when I lost my brother I was like what the hell just happened. So कभी भी इतना खुश नहीं होना, और कभी भी I think sadist तो मैं खैर बन गई हूँ, पर कभी इतना खुश नहीं होना कि सैड जब आप हो तो वो आपको शॉक दे आपकी बॉडी को. So आपको गिल्ट फील हो खुश होते हुए? हाँ, Does like that happen? I think so. Like I don't know. I haven't thought about guilt, but I make sure कि बस आप पे से बाहर ना हो मेरी खुशी. और जब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर मेरे दोस्तों ने मेरा पेप्सी का बिलबोर्ड देखा तो पागल हो गए. Like everyone sending me like oh you're everywhere. I didn't feel anything. Like I was like, okay, yeah, so nice. I felt great that my friends are so supportive. पर ये एक achievement है, तो हाँ, so achievement जो है ना, वो मुझे achievement feel नहीं होती. Is a masla in life. But that also is keeping you very grounded, I feel. I feel, and I think that's it's not getting to your head. I yeah, feel. I think it's also one of the reasons that I choose to be okay with how this is. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जो दूसरे लोगों के साथ होते हुए देख रही हूँ वो मेरे साथ कभी हो. People get out of their heads and become a different person. Arrogance, I want to stay far away from it. I would rather feel guilty than be arrogant. I think losing your brother at such a young age must have been very, very devastating. And yeah. आप लोगों की जो आप बता रही हैं कि
दोस्ती भी थी और आप लोग एक्ट और वो Yeah, सारा कुछ definitely. तो आई कैन इमेजिन लाइक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट आउट ऑफ इट एंड टू सी फिर आपके लव्ड वंस लाइक योर मदर्स रिएक्शन टू दैट लॉस Yeah, like it's a broken family. Yeah, you can never, mend a mother, father who lose their child. Like, so आप डबल ट्रेजेडी फेस कर रहे होते हैं ना Yeah. एक तो लॉस एंड देन टू सी योर पेरेंट्स गो थ्रू दैट Yeah. पेन आई थिंक दैट इज yeah, just something that you cannot yeah, you ever can't put it adjust in to. words. Yeah. So what happened? If you want to talk about it. Yeah, Or if no, you want, I that's love also talking okay. about him because like he formed me into the person I am. मैं बचपन में बहुत लड़ाका होती थी. मेरा भाई मुझे कराटे सिखाता था. We would fight and he made sure कि मुझे कोई बुली ना कर सके स्कूल में और मुझे लड़ाई आती हो. I can protect myself and जब when आप 12th grade पास करते हैं तो you have to decide कि मैंने अब क्या करना है लाइफ में. तो he fought कि no, she is an artist. हम इसको आर्टिस्ट बनने देंगे नहीं बनाना, computer scientist नहीं बनाना. Okay. So like he would take a stand for me. My sister is more like the girly girl. अम्मी अब्बू जो आप कहेंगे वो मैं करूँगी ज़िंदगी में. The mama papa's child, and he was like the A grader, so he would like take a stand for me. And opinionated जो जितनी मैं हूँ, I think वो मैं इसीलिए हूँ क्योंकि I was allowed to form my own opinions. तो after he was gone तो उसके ना ज़िंदगी के 16 साल के ना journals उसने लिखे हुए. So I got to know him पढ़ के even better. He was a great poet also in his own time. तो फिर I decided कि I'm going to be exactly who I want to be, and he saw me becoming. So he said that you're not going to live a normal life and just do what your heart wants to do. So he had asthma. Sorry, he had an attack in his sleep. Unfortunately, his wife was next to him, but she couldn't save him. He woke up. उसने खुद ही गाड़ी drive की, hospital पहुंचा. I'm so sad because he was alone when he, he had his last breath. So I broke down at the hospital door और उनको नहीं बता सका कि ये मसला है. give me a shot or whatever. So yeah, I was very, the entire family is so devastated. But you find your way to maneuver around these feelings. अल्लाह के हर फैसले में कोई बेहतरी होती है, हम उसको कभी समझ नहीं पाते. Yeah. And especially at this point in time, I think it's so difficult that no matter what anyone says, whatever वो आपका loss कभी भी fulfill नहीं हो सकता. There is a and you miss whole- him at every point in time, I'm sure. Obviously, whenever I have I think so achievements don't feel like achievements because you can't celebrate with those who made you become this person. So it's a whole. चलिए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और आप लोगों को और भी ज़्यादा हौसला दे to go through this difficult time, which I feel वो सारी ज़िंदगी रहता है आपका. Coming back to, I really A find lighter it note. lighter note. You guys, this group of people like Hakan, you, Zarar, and all these like starting together, mashallah. Yeah. So मुझे ना मैं कल भी questions लिख रही थी, मैंने यार कितने मजे की चीज़ें आप लोग आगे जाएंगे and आप लोग पीछे क्या देखा कर यार हमने ये किया था वो किया था, आप लोग जिंदगी में और बिजी हो जाएंगे, बट ये जो यादें हैं वो हमेशा रहेंगी साथ ना. Yeah, absolutely. हम ये सोचते हैं कि जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट आता है या था तो मैं I would call Khakan and be like, do you know this person? Yeah. What do I need to know? Tell me now. So before going on Google, I would call him or call Daniel, and now I also call Hamza. Okay. So we've formed this it's a friend. I'm glad I met these people before I went into the industry. We were friends and we started together because we knew कि हमारी दोस्ती है. कौन है हम? You know that real you know. Yeah. And also I feel कि फिर फ्यूचर में जब भी आप लोग काम करोगे तो मजा आएगा स्टेट पे. You'll be excited कि मैं दानियाल के साथ या हमजा या मैं खाकान के साथ. खाकान बोलता है ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट मेरी वजह से आया. कितनी बार सुन चुकी है? नहीं actually. That's very sweet of you. No. That is very unlike him also. I didn't say that, Kaka. She said it's your friend. He's very unlike him. Because I say it all the time. He doesn't have to.
And you have so many guy friends, you know, male friends. So do you feel ये जो नई आपकी एज की जो जनरेशन है of you know young guys, boys, are they also as emancipated and as you know empowered as the females are of your generation? Do you feel that उनके अंदर भी ये जर्नी हुआ है? क्योंकि औरतों में तो डेफिनेटली एक चेंज आया है, राइट? लड़कियां तो अब एम्बिशियस हैं, करियर को बहुत स्ट्रांग लेती हैं, दे नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर इट. बट आर वी सीइंग द सेम काइंड ऑफ reciprocal change in point of view men, from men's point of view? I think men are always like, they are built in a way कि उनको पता है कि they have to make it or break it. Like by hook or by crook, they have to, the path they've chosen, they have to make something out of it. क्योंकि allow नहीं करती ना society आदमियों को to be a failure. That's true. बहुत प्रेशर है भाई. बहुत प्रेशर होता है, उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है, I feel like. And so in that case, I feel like कि वो they work hard and they try to do what they can do best. So yeah, I would say कि वो शुरू से ही चलता आ रहा है उनके लिए. तो अब तो women, we also like we have to fight much more than they have to fight. Yeah. It's different aspects of life. But in terms of like respecting a woman or accepting that their freedom or their choice of freedom and understanding no doesn't mean बेइज्जती, no is a no, क्या आपको ये चीज़ें उनमें change होती हुई नज़र आ रही हैं? Yes, I think उनके social cues बेहतर हैं उन मर्द हज़रात से जो कि पिछली generation के हैं. I would say they're more sensitive towards what a woman deals with on a day-to-day life. Yeah. Thank you so much. And are you working on any project? Anything you're shooting? I know you're shooting something. I don't know if you want to share the details. Or I mean, I can't share the details, but I can. It's out in the open now. What ज़बरदस्त projects हैं आपके पास जो? एक तो मैं बहुत excited हूँ फातिमा जना के बारे में. It's you're one playing, of my. I'm playing Rati Jana. Oh. I saw that red dress video. That was really nice. The Rose of Bombay. Yeah. So excited, so delightful for me to be able to play वो character, pivotal character. I love her. And जब मैंने उसके बारे में research की तो मुझे और मज़ा आया. She was also an Aquarius like me and loved animals. I didn't know that. Yeah. Okay. And was born on the 12th of 13th of February. And like so much information I have on her. When I read उनका last जो उन्होंने खत लिखा था कायद-ए-आज़म को, Dear Jay, and it was her like goodbye to her. It was so, to him it was so like loves. उन्होंने इस तरह से लिखे थे कि मैं I started crying. Like मैं पढ़ रही थी और तब तक मैंने एक भी scene shoot नहीं किया था. मैं research करी थी जब ये हुआ था. I started tearing up and I was like, oh my god, wow, I have to do this. I have to get this character. I'm just very delightful कि मैं कर रही हूँ. So we'll see you in Fatma Jana. And you see. And I think in August, September it should be coming. Anything like that, right? Yes, August. Okay. That's exciting. And what's the second project? The second project is a film. It's my first film with Farhan Saeed. Oh, zabardast. Yeah, he's a great guy to work with. He's very easy to work with, and Imran Malik is directing it, and I'm as excited for it to come out. It's very challenging, the character and everything, but I hope it pays well. Inshallah. So Farhan गा रहे होते हैं अक्सर सेट पे. गुनगुना रहे होते हैं. है ना? Like if I won't work with him, but like मुझे तो उनसे सुनने का बहुत शौक है. He sings so beautiful. He's really good. You imagine him just like गा रहे हो और आप मजा आता है live उनकी performance. Yeah. तो ये फिल्म कब आने के उम्मीद है? We're hoping to finish it by next month, and then there's gonna be post. So we're looking at August. Exciting news, ज़बरदस्त projects, and thank you so much for your time. Thank you. अच्छा हुआ we made it happen because हमारा I think पता नहीं कब से conversation चल रही थी. अब मैंने लाहौर का plan सबसे पहले I messaged us like let's see if she's in Lahore. So if she's not traveling, I really wanted to do this interview. But a lovely conversation, and thank you for sharing some details so openly and candidly with us. I hope that आज जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो कुछ take away something with them. One last thing, anything you want to say about Palestine or what's happening in Gaza? Yeah, I mean, life में इतनी uncertainty होती है कि whatever is happening in Palestine, people are going through hell on earth. और उस सब में भी
know how to be kind towards each other. So why do you have to go through hell to do that? We can just pray for them to like cease fire. We can pray for Israel to get some source of humanity in their heart, or to have a heart to stop doing what they're doing. Yeah. But like, we just need to spread kindness. Like, I would always, my last word to anything, even when I'm dying, I think it would be to be kind to all living things. True. So thank you so much for your time. And we you look for forward having to me. seeing you very soon on the screen, small and the big. And take care. And Allah Hafiz. Thank you for having me. Lovely being with you.